Hello everyone, welcome back to our Python programming for data analytics course. In today's lecture, we will cover some of the most fundamental concepts of Python that every beginner must know. The topic we will discuss are commands in Python. Then second topic that we are going to cover in this video, which is print function. After that, different ways of printing. Understood? After completing this print function topic, we are going to see what is escape sequence. Fine. And at last but not least, we are going to see what is variables. Understood? So in today's lecture, we are going to cover commands in Python, after that print function, then different ways of printing, after that we will going to cover escape sequence, and then variables. Understood? Okay, fine. So let's get started from our first topic, that is commands. So what is commands? बेसिकली जो हमारी कमेंट्स होती है वह जो भी हम लोग कोड लिखेंगे उस कोड को ठीक से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. फाइन, इट हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स कोड. फाइन. सो कमेंट आर used to explain a code and make it more readable. Fine. Okay. So there are two type of comments. हम लोग दो तरीके से कमेंट लिख सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन कमेंट. अंडरस्टूड? एंड सेकेंड वन इज मल्टी लाइन कमेंट्स. फाइन. ओके. सो जो हमारे सिंगल लाइन कमेंट होती है इसे हम हैश सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मल्टीपल लाइन कमेंट्स होती है इन्हें हम ट्रिपल डबल कोट से डिनोट करते हैं. फाइन. सो दिस इज सिंगल लाइन कमेंट. Understood? And this is multi-line comment. Fine. Okay. So see here, I am going to do practical of the single line comment and multi-line comment. So see here, जो सिंगल लाइन कमेंट होती है जैसे मैंने आपसे कहा था वह हैश से स्टार्ट होता है. तो देखिए here hash, this is a single line comment. Understood? Okay, fine. So चलो इसे हम रन करेंगे. जैसे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर मैं जो हमारी कमेंट्स होती है यह कमेंट रन नहीं होती है, एग्जीक्यूट नहीं होती है, बिकॉज जो हमारे कमेंट होते हैं
इसे हम लोग जस्ट कोड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट्स वाई। फाइन। सो ये रही हमारी सिंगल लाइन कमेंट। एंड व्हाट इज मल्टी लाइन कमेंट? सो देखिए, अगर मैं ट्रिपल कोट यूज़ करूँ और यहाँ पे लिखूँगा दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट्स या फिर कमेंट, एंड आई एम गोइंग टू एनक्लोज विथ अ ट्रिपल कोट, 1 2 3, 1 2 and 3, fine. So this is multi-line comment. So in this way we have completed our first topic, that is comment. Now move ahead. So what is my second topic? But before understanding the second topic, we need to learn why we use comment. Why we used comment. So why we use comment? Because it improves the code readability. Fine. Second, it helps other to understand the code. It helps others to understand the code. Fine. So that's why we are using comments. Fine. Okay. So the second topic that we are going to cover is print function. Fine. Print function. So what is print function? Why there is a need of print function? Basically, print function is used to display an output. Understood? Print function is used to display an output on the screen. Fine. Okay. जो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने कोई न्यू कार परचेस की हो और हमें इस कार को ड्राइव करने कोई ड्राइवर चाहिए होगा। फाइन। सो इस ड्राइवर का फंक्शन क्या है, इस ड्राइवर का काम क्या है? इस गाड़ी को चलाना। अंडरस्टूड? इस गाड़ी को रन करना, इस गाड़ी को ड्राइव करना। दिस इज अ फंक्शन ऑफ एनी ड्राइवर। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे जो हमारे पास में प्रिंट फंक्शन होता है, इस प्रिंट फंक्शन का काम होता है किसी वर्ड को या फिर किसी लेटर को, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग्स, या फिर किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रिंट करवाना। अंडरस्टूड? ओके। सो देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट XYZ। सो जैसे हम लोग यह कोड लिखेंगे प्रिंट XYZ, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। सो देखिए, आई एम गोइंग टू डू प्रैक्टिकल इन फ्रंट ऑफ यू of print function. So let's see. Print XYZ. So run this. So देख रहे हो, प्रिंट हो चुका है। जो हमारा प्रिंट फंक्शन होता है, यह किसी चीज़ को प्रिंट करने का वर्क करता है, किसी चीज़ को प्रिंट करने का काम करता है। फाइन। ओके। नाउ देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ writing, or there are different ways of printing. So first way जो होता है प्रिंटिंग का, वो होता है नॉर्मल, जो हम लोग प्रिंट करते हैं टेक्स्ट। फाइन। और जो सेकंड वे होता है वह होता है प्रिंटिंग मल्टीपल वैल्यूज, MULTIPLE, प्रिंटिंग मल्टीपल वैल्यूज। ओके। एंड जो थर्ड वे होता है, दैट इज यूजिंग सेपरेटर। फाइन। सो वन बाय वन हम लोग इसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जानेंगे। अंडरस्टूड?
Okay, so what is the fourth way of printing? That is using end parameter. That is using end parameter. Got it? And what is the fifth way of printing? The fifth way of printing is nothing but a F string formatter. F string formatter. Got it? Okay. So let's see one by one. ये तो हमने जस्ट अभी प्रिंट करवाया है. देखिए आप देख पा रहे हो प्रिंट XYZ. यस, दिस इज अ प्रिंटिंग ऑफ एनी टेक्स्ट. नाउ आई एम गोइंग टू यूज सेकंड वे. सो सेकंड वे क्या है प्रिंटिंग का? प्रिंटिंग ऑफ मल्टीपल वैल्यूज. सो देखिए, अगर मैं नेम विच इज इक्वल टू TIGER टाइगर लिख रहा हूं, फाइन. नेम विच इज इक्वल टू टाइगर एंड एज विच इज इक्वल टू 38. अंडरस्टूड? नाउ मुझे नेम और एज आउटपुट में प्रिंट कराना है. सो मैं कैसे कराता हूँ? यूजिंग प्रिंट फंक्शन. सो देखिए, प्रिंट नेम कॉमा एज. गॉट इट? नाउ रन दिस कोड. देखिए यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज रन हो चुकी है. फाइन. सो ये रहा हमारा सेकंड वे ऑफ प्रिंटिंग. So what is the third way? The third way of printing is using separator. So let's see the practical of printing using separator. Suppose I want to print the name of languages. For example, Python. Okay. Now C++, then SQL. Understood? But I want to use here separator between Python, C++ and SQL. So at that time, after writing this SQL, after writing this last word, I am going to use separator which is equal to sep. जो सेप होता है, यह पैरामीटर एक सेपरेटर का वर्क करता है. सो देखिए, जैसे हम इसे रन करेंगे कुछ इस तरीके से आउटपुट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा. अंडरस्टूड? सो हियर हम लोगों ने जो प्रिंट किया है यूजिंग सेपरेटर किया है. फाइन. Okay. Now the fourth way of printing is using parameter. So देखिए जो होता है using end parameter. So end parameter क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूँ मुझे प्रिंट कराना है कृष्णा एंड राधा. प्रिंट कृष्णा. ओके. एंड राधा. सो जैसे मैं इसे प्रिंट करता हूँ नॉर्मली प्रिंट होता है, बट मुझे कृष्णा पहले प्रिंट कराना है और राधा को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना है. सो एट दैट टाइम व्हाट कैन आई डू? एक तो मैं इस तरीके से प्रिंट कराऊंगा. सो फर्स्ट कृष्णा प्रिंट होगा और जैसे ही मैं सेकंड टाइम प्रिंट करूंगा राधा, प्रिंट राधा. अंडरस्टूड? सो देखिए एक के नीचे प्रिंट हो रखा है. फाइन. बट जैसे ही हम लोग कृष्णा के एंड में यूज़ करेंगे कॉमा एंड विच इज इक्वल टू ब्लैंक.
सो जैसे मैं इसे रन करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं कृष्णा एंड राधा एक साथ प्रिंट हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंड पैरामीटर। जो एंड पैरामीटर है यह एक प्रिंट फंक्शन में वर्क करता है। फाइन, अगर मैं कह दूँ यहाँ पर मैं एंड स्लैश एन, सो अब बताइए मुझे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, जिसे हम लोग कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। सो एस्केप सीक्वेंस क्या होता है हम लोग अभी जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज द फोर्थ वे ऑफ प्रिंटिंग, दैट इज यूजिंग एंड सेपरेटर। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट यूजिंग एब्स्ट्रिंग फॉर्मेटर। सो एब्स्ट्रिंग फॉर्मेटर क्या होता है? सो देखिए बच्चों, अगर हमारे सामने यहाँ पर कोई x की वैल्यू हो 7 एंड y की वैल्यू हो कुछ 8, फाइन, और मुझे x एंड y की वैल्यू फेच करनी हो, सो एट दैट टाइम हम लोग एब्स्ट्रिंग फॉर्मेटर का यूज़ करते हैं। सो देखिए कैसे करते हैं। प्रिंट f, अंडरस्टूड, प्रिंट f, यहाँ पे हम कोट लिखते हैं। आफ्टर दैट in this code I am going to print this is a x, और इसे मैं लिख रहा हूँ कोट में, फाइंड एंड y, इसे लिख रहा हूँ मैं कोट में। सो जो हमने यहाँ पर मैं x और y की वैल्यू लिखी है 7 एंड 8, यह x y वैल्यू इस x में, और जो हमारे ऊपर में y की वैल्यू है 8, तो वह वैल्यू 8 इस y में स्टोर हो रखी थी। तो जस्ट हम इसे डिस्प्ले कर रहे हैं यूजिंग एब्स्ट्रिंग फॉर्मेटर। सो देखिए हो गई डिस्प्ले, यस, गुड। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रिंट फंक्शन, गॉट इट, फाइन। सो चलो बच्चों इसे नोट कर लो, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जाएंगे, एस्केप सीक्वेंस। सो सी हियर, व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस? बेसिकली ESCAPE, escape sequence. So what is escape sequence? Escape sequence are special character. Escape sequence are special character used inside the strings. Find escape sequence are the special character used inside the strings. So there are few escape sequence. So which are those? First one is new line. First one is new line, that is /n. Second one is tab space, that is /t. Third one is single quote, that is /single quote. Fine. Then there is double quote. Understood? And last but not least, backslash. Backslash. Understood? Okay, fine. So let's see one by one the practical of escape sequence. So अगर हमने कोई लेटर प्रिंट किया हो और हमें सेकंड लेटर या फिर सेकंड वर्ड न्यू लाइन में प्रिंट करवाना हो, सो एट दैट टाइम हम लोग यूज़ करेंगे /n का। सो देखिए बच्चों कैसे करते हैं।
प्रिंट अमूल. ओके, इज अ मिल्क. जो भी मिल्क होगा इसे हम लोग न्यू लाइन में टाइप करेंगे. सो कैसे करते देखिए. हियर आई एम गोइंग टू राइट स्लैश एन. ओके, so now run this. Understood? So in this way slash n escape sequence works. Fine. Okay, so then sir slash t क्या होता है. so देखिए बच्चों, अगर मैं इस सेम कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, फाइन, और यहाँ जाके हम लोग सेम कोड को पेस्ट करते हैं. चलो कोई नहीं, हम लोग टाइप करेंगे. ठीक है, अभी देखिए. प्रिंट वेलकम टू क्लासरूम. अंडरस्टूड. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू क्लासरूम. जैसे ही हम लोग यहाँ पर मैं स्लैश टी यूज़ करेंगे तो टू एंड क्लासरूम के बीच एक टैब का स्पेस आपको नज़र आएगा. देखिए, दिख रहा है. यस. सो दिस इज अ स्लैश टी एस्केप सीक्वेंस, दैट इज न्यू टैब. आफ्टर दैट अगर मुझे सिंगल कोट यूज़ करना हो ड्यूरिंग प्रिंटिंग, सो हम लोग स्लैश सिंगल कोट का यूज़ करेंगे. ऐसे हम लोग स्लैश डबल कोट का यूज़ करेंगे. फाइन. सो देखिए, आपको जस्ट मैं डबल कोट यूज़ करके दिखाऊंगा, आप लोग सिंगल कोट अपने खुद के एंड से ट्राई करिएगा. फाइन. सो देखिए, प्रिंट कृष्णा एंड राधाज. अगर मुझे राधास का जो एस है, एस पे मुझे चाहिए होगा सिंगल कोट. सो यहाँ पर मैं स्लैश सिंगल कोट टाइप करूँगा, जिससे जब हम प्रिंट करेंगे तो राधास प्रिंट हो जाएगा. फाइन. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर एस्केप सीक्वेंस टॉपिक. So what is escape sequence? Basically escape sequence are a special character which is used inside the string. Fine. So string क्या होता है, जो देखिए बच्चों, हमने प्रिंट में डबल कोट यूज़ किया था. फर्स्ट देखिए क्या लिखा है यहाँ पर मैं, प्रिंट क्या लिखा है देखिए, प्रिंट इन ब्रैकेट अमूल इज अ मिल्क. फाइन. तो जो डबल कोट है ना यहाँ पर में, जो भी हम लोग डबल कोट के बिटवीन टाइप करेंगे या फिर जो भी हम लोग डबल कोट के बीच में लिखेंगे, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग्स. अंडरस्टूड. चाहे वो डबल कोट हो, चाहे वो सिंगल कोट हो, चाहे वो ट्रिपल कोट हो. अंडरस्टूड. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू कवर आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज वेरिएबल्स. सो बच्चों, व्हाट इज वेरिएबल्स बताइए मुझे. डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग वेरिएबल्स? ओके, फाइन. सो सी हियर, बेसिकली अ वेरिएबल आर अ कंटेनर. What is variable? Variable are a container which is used to store data. Understood? So देखिए, अगर मैं इसे कहूँ this is my memory location, तो इस मेमोरी लोकेशन पे हम लोग सपोज x इज इक्वल टू 7. सो जो यह 7 है ना, यह 7 हमारा डेटा हुआ है.
और जो x है इससे हम लोग कहते हैं नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, या फिर इसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल। फाइन। सो व्हाट इज वेरिएबल? इट इज a नेम ऑफ memory location which is used to store the data। अंडरस्टूड। सो ऐसे हम लोग कितने भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। फाइन, देखिए अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर मैं y विच इज़ इक्वल टू 8, सो जो y है यह इस मेमोरी में स्टोर हो रखा है, सॉरी जो 8 है हमारा इस मेमोरी में स्टोर हुआ है, और जो y है यह एक लोकेशन का नेम है जहाँ पर में हमारा 8 हमने स्टोर कर रखा है। अंडरस्टूड? ओके फाइन। सो लेट्स सी द प्रैक्टिकल ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल बनाते कैसे है और वैल्यू स्टोर करते कैसे है। सो सिंपली हम लोग x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 8 हमारे मेमोरी लोकेशन में स्टोर करेंगे। फाइन। जो भी हमारी x की वैल्यू होगी या फिर जो भी हमारी y की वैल्यू होगी इसे हम लोग हमारे मेमोरी लोकेशन में अभी सेव करेंगे या फिर इंसर्ट करेंगे। अंडरस्टूड? सो देखिए हियर x विच इज इक्वल टू 7 एंड y विच इज इक्वल टू 8। अंडरस्टूड? और मैं लास्ट में क्रिएट कर रहा हूँ थर्ड वेरिएबल दैट इज c, सॉरी दैट इज c। इसे मिटा रहा हूँ मैं इस c को। सो यहाँ पे c क्या होगा? सो मैं चाह रहा हूँ जो हमारा c होगा c विच इज इक्वल टू x प्लस वाई। सो बताइए x क्या है 7, y क्या है 8, तो आंसर क्या आएगा 15। तो c इज इक्वल टू 15। तो यह 15 वैल्यू यहाँ पर में स्टोर हो जाएगी। सो हम चेक करते हैं, लेट सी। सो c विच इज इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस वाई, c विच इज इक्वल टू x प्लस वाई। सो देखिए अभी जस्ट हम c को प्रिंट कराते हैं। ओके, सबसे पहले तो इसे रन करेंगे। क्या रन हो गया? यस हो गया रन। अभी हम लोग चेक करते हैं c में वैल्यू कौन सी स्टोर हुई है। सो देखिए प्रिंट c, नाउ रन दिस। सी हियर 15, देख रहे हो आप जो हमारी x की वैल्यू थी 7 और y की वैल्यू थी 8, इन दोनों का सम हुआ है और वह वैल्यू इस c वेरिएबल में स्टोर रखी है। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे वी आर we have created our variable that is c, x and y। हम लोग इसी तरीके से वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। फाइन। बट सर अब मुझे बताइए अगर मैं 7o विच इज इक्वल टू 90 लिख दूँ तो क्या ये 7o सर हमारा वेरिएबल हुआ है? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। बिकॉज द थिंग इज डैट देयर आर few rules of writing the variable। there are few rules for writing the variables। so sir क्या हो सकते हैं वेरिएबल के लिखने के रूल्स? क्या आप हमें बताओगे? यस बच्चों, देखिए जो हमारा फर्स्ट रूल होता है रूल ऑफ, या फिर मैं कहता हूँ रूल फॉर राइटिंग वेरिएबल्स। सो जो फर्स्ट रूल होगा वेरिएबल लिखने का वह होगा इट मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर और एनी लेटर। फाइंड। और जो हमारा सेकंड रूल होगा वेरिएबल लिखने का वह होगा इट कैनॉट
स्टार्ट विथ एनी नंबर, फाइन। और जो हमारा थर्ड रूल होगा वेरिएबल लिखने का, वह होगा इट कैनॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर, अंडरस्टूड, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। जो भी हमारे कीबोर्ड्स पे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, इसमें से हम कोई भी कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर मतलब होता है सिंबल्स, कोई भी सिंबल को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल डॉलर, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, व्हाइल राइटिंग द वेरिएबल, अंडरस्टूड। बट जो हम लोग यूज़ करते ओनली वन सिंबल, वो है अंडरस्कोर। सो देखिए फर्स्ट रूल में लिखा हुआ, मैं यहाँ पर मैं अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं या फिर लेटर को यूज़ कर सकते हैं। हम लोग नंबर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, इसे भी यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं, फाइन। और जो हमारा फोर्थ रूल होगा, वह होगा रिजर्व कीवर्ड जो होते हैं, रिजर्व कीवर्ड्स cannot be used as वेरिएबल। जो हमारे रिजर्व कीवर्ड होते हैं ना, इसे हम लोग एज ए वेरिएबल नहीं लिख सकते हैं। सो देखिए वन बाय वन। सो सर रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं बच्चों? कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में जो बिल्ट इन होते हैं, इसे हम लोग एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज, assert, while, for, break, yield, continue, lambda, ठीक है, मैप, फिल्टर, reduce, काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स है जो रिजर्व कीवर्ड्स है। इसे आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हो, पाइथन में रिजर्व कीवर्ड कौन से हैं। इसे हम लोग एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं करते हैं, फाइन। सपोज मैं यहाँ पर मैं एज लिख दूँ, देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है एज जो है रिजर्व कीवर्ड है, फाइन। सो इसीलिए हम लोग कुछ रिजर्व कीवर्ड को एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं, अंडरस्टूड। सो देखिए आप लोगों को जो रूल्स होते हैं फॉर राइटिंग द वेरिएबल्स, मैं आपको वन बाय वन प्रैक्टिकली अभी बताने जा रहा हूँ, ओके। सो देखिए जो फर्स्ट रूल है क्या है, इट मस्ट स्टार्ट विथ अ अंडरस्कोर और अ लेटर। सो देखिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल का नाम स्टार्ट करेंगे यूजिंग अंडरस्कोर। सी हियर अंडरस्कोर नेम विच इज इक्वल टू लॉर्ड, ओके, अंडरस्कोर नेम विच इज इक्वल टू लॉर्ड। सो जो अंडरस्कोर होता है इसे हम लोग एज अ वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू रन दिस कोड। हो गया रन, आ गया ग्रीन टिक, ओके। हम लोग चेक करेंगे अंडरस्कोर नेम इन न्यू लाइन। आई एम गोइंग टू चेक दैट लॉर्ड डेटा हमारे नेम वेरिएबल में स्टोर हुआ है या नहीं। सो देखिए नेम, गॉट इट, रन हो गया है, यस। सो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ राइटिंग द वेरिएबल। एंड व्हाट इज सेकेंड रूल? जो लेटर होते हैं ए बी सी डी ई एफ अप टू जेड, इसे ही हम लोग एज अ वेरिएबल लिख सकते हैं, फाइन। सो देखिए अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर मैं टोटल विच इज इक्वल टू 779, फाइन। देन आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस टोटल, गॉट इट, हो गया टोटल प्रिंट। सो इसे एज अ वेरिएबल हम लोगों ने ट्रीट किया है, यस सर। आउटपुट है, इसका मतलब क्या है?
मेरे कंपाइलर ने, हमारे इंटरप्रेटर ने, जो कि हमारा गूगल कोलैब है, दैट इज़ माई IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ने इस अंडरस्कोर नेम एंड टोटल को एज अ वेरिएबल ट्रीट किया है। आफ्टर दैट जब हम लोग इसे रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तभी हमें आउटपुट दिखेगा ना। फाइन। सो क्या आपको प्रूफ मिल गया? हम लोग वेरिएबल को अंडरस्कोर और लेटर से लिख सकते हैं। यस। सो सेकेंड रूल इज इट कैनॉट स्टार्ट विथ अ नंबर. सो सी हियर, इफ आई एम गोइंग टू राइट 3 YUM, 3M, which is equal to 3M, which is equal to 90. सो क्या यहाँ पर मैं 3M विच इज़ इक्वल टू 90 जो मैं लिखा हूँ, यहाँ पर मैं 3M एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा? नहीं होगा ना। सो देखिए मैं इसे रन कर रहा हूँ, अगर ये रन हो जाता है सो डैट मीन्स मैं गलत हूँ, अगर रन नहीं होता है, एरर आता है, इसका मतलब है मैं सही हूँ। फाइन। सो देखिए चेक करेंगे, आ गया एरर? समझ में आ रही है बात? जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना, उसे हम लोग जब भी लिखने जाएंगे, जब भी हम लोग वेरिएबल को राइट करते हैं, तो एट दैट टाइम वी आर नॉट यूजिंग द नंबर एट द स्टार्टिंग ऑफ अ वेरिएबल नेम. अंडरस्टूड? ओके फाइन. सो लेट्स मूव अहेड. व्हाट इज द थर्ड रूल? The third rule is we cannot use a special characters while writing the variable. जो भी हमारे कीबोर्ड में ASCII कीवर्ड्स होंगे, उस ASCII कीवर्ड्स में जो भी जितने भी सिंबल्स हो गए, इसे हम लोग एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं करते हैं. सो देखिए आई एम गोइंग टू यूज़ हियर $, फाइन, TOTAL, टोटल, डॉलर टोटल, विच इज़ इक्वल टू 80. मुझे बताइए, क्या हम लोग जो डॉलर है यह स्पेशल कैरेक्टर है, इसे हम लोग एज ए वेरिएबल लिख सकते हैं? नहीं सर. सो लेट्स सी, लेट्स चेक. आ गया एरर? सो बच्चों, always take into consideration that we cannot use number in our variable at the start. Fine. And second one is we cannot use a special character while writing the variables. So यह जो दो exceptions है for writing the variables, यह आपको learn होने ही चाहिए. Understood? Okay, fine. So what is the fourth rule? The fourth rule is that we cannot use a reserve keyword as a variable. So sir, reserve keyword क्या होते हैं? देखिए, as, assert, while, for, break, yield, continue, lambda, map, filter, reduce. Okay. So there are so many reserve keywords. If, elif, else, continue, pass. सो दिस ऑल आर रिजर्व कीवर्ड्स. सो जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, इन्हें हम लोग एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग यूज़ करेंगे एज या फिर एसर्ट, ASSERT, एसर्ट, एसर्ट विच इज़ इक्वल टू 80. सो क्या एसर्ट, जिसे मैं एज ए वेरिएबल नेम लिख रहा हूँ, यह इस 80 वैल्यू को स्टोर कर पा रहा है? सो देखिए नहीं ना. सो व्हाई दिस इज सो? जस्ट दिस इज बिकॉज ऑफ वी कैनॉट यूज द रिजर्व कीवर्ड एज अ वेरिएबल. फाइन. सो ये रहे हमारे 4 रूल्स. देर आर 4 रूल्स फॉर राइटिंग द वेरिएबल्स. गॉट इट? ओके फाइन. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर 4 टॉपिक्स. फर्स्ट वन इज comment in Python. Second one is print function of Python. Third one is escape sequence of Python. And last but not least, it is variables in a Python. Got it? Okay. So friends, my colleagues and professionals, हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए. ओके. जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए. आपको इस
टॉपिक्स के सारे थ्योरी नोट्स अलॉन्ग विथ प्रॉपर कोड के नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे रहा हूँ। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग फाइल को एक्सेस कर सकते हो। अंडरस्टूड? सो डैट आपको रिवीजन करने में हेल्प होगी। फाइन। ओके फ्रेंड्स, नाउ in our upcoming lecture we are going to see what is data types and what are the strings. Okay friends, bye bye. Thank you. Thanks a lot.